इनफैक्ट आई हैव ऑफन सीन कि हमारे फ्रेंड्स में ही कुछ भी छोटा सा फ्लू हो गया, दे पॉप्ड अ पिल. व्हाट डू यू थिंक व्हेन अ पर्सन इज इन अ क्रिटिकल कंडीशन एंड व्हेन दे आर शोइंग द रेजिस्टेंस फॉर सच काइंड ऑफ मेडिसिन, हाउ मच इट इंटरफियर्स विद द ट्रीटमेंट? इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एज ऑफ नाउ. इंटेंसिव केयर में अगर आप किसने पूछा कि आउटकम्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही है. देयर वाज वन पेशेंट हु केम इन and could not breathe and was sitting upright, just could not breathe. Already दूसरा हॉस्पिटल में जाकर आ चुका था. पेशेंट जब भी वेंटिलेटर पे जाता है उसकी बॉडी में क्या होता है, एंड व्हाट आर द चांसेस ऑफ पेशेंट लीविंग द वेंटिलेटर? कि भाई जिसको वेंटिलेटर लगता है उसको क्रिटिकल तो रहते ही हैं, लेकिन वो पेशेंट्स जिसको वेंटिलेटर लगा के उसको हम जिंदगी जीने का चांस देते हैं. There was this one social media reel जो काफ़ी रीसर्फेस हुई थी, दिल्ली एयरपोर्ट की थी. दिल्ली एयरपोर्ट जहाँ पे 50,000 लोग जनरली मौजूद होते हैं. There was this one old man who just collapsed. Everyone was panicking, no one could step in. There was this only one doctor जिन्होंने उनको CPR दिया. He saved the life. It was a matter of just one split second. Otherwise, he may have lost his life. Imagine in a country like India जहाँ पे हम हर रोज़ we come across to people having heart attacks, accidents, strokes. People around, it is about people around. They really don't know what is to be done. They really don't know the correct steps. They don't know the importance of that split second. And for the very same reason, to have a better understanding of a critical care, today we have Dr. Sanjeet Sashidharan joining us. To introduce him, he's a director at Critical Care of SL Raheja in associate with Fortis. He has more than 16 years of experience, gold medal winning in innovation patented for critical care nutrition. He has expertise in life support strategies. He's saving lives every single day. Let's start our conversation with Sanjeet Sashidharan, sir. Sir, while I was preparing for this podcast, and I came across to a big number, that is 9,000 people are reported for the emergency and the critical care for every 1 lakh people in India. Do you really think that India is prepared in terms of the infrastructure, availability of the doctors, to take care of such a huge number? So India is a very large country in the first place. So if you were to divide India into two parts, you have rural and urban. मतलब हमारे पास rural भी होता है और हमारे पास urban भी होता है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे, इंफ्रास्ट्रक्चर is completely inside the urban territory. Completely inside the urban territory. Whereas the infrastructure in the rural areas could be 10% of what the infrastructure in the urban territory is all about. So if you ask me, are we prepared for emergency services? No, we are not prepared as a country for emergency services. If you look at urban society, just like, let's take the example of metros like Mumbai, like Pune. Yes, we are prepared over there. Reasonably prepared. There also we are not completely prepared because of the fact that these urban localities also have got ambulances, have got hospitals, but they are largely not driven by public services. At the end of the day, हमको क्या चाहिए? हमको ऐसा चाहिए कि हम एक नंबर डायल करें और हमारे पास एम्बुलेंस आ जाए और हमको इमरजेंसी सर्विसेज मिल जाए. ये नहीं होता इसमें. ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमको नहीं पता कि हमको जाना कहाँ पर है. तो that services per se, it's not just having a number, it's also getting to the hospital, getting the treatment in the ambulance, getting the treatment when you reach the hospital without a hitch. So that entire ball game is not right. अगर आप पूछोगे रूरल एरिया में क्या होता है, वहाँ पर तो अलग ही कोई चैलेंज है. वहाँ पर ऐसा चैलेंज है कि जोग्राफिकल लोकेशन ही अलग है. जैसे कि अरुणाचल प्रदेश पकड़ लो. अरुणाचल प्रदेश इज अ प्लेस फुल ऑफ हिल्स. The one hospital is away from the other hospital by more than 50 kilometers. महाराष्ट्र के इंटीरियर्स पकड़ लो. महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में let us go not even very far off. Let us go to Palghar. Even away from Palghar when you go, no, you will have one hospital after some 50 kilometers. One good hospital. और जब मैं हॉस्पिटल बोलता हूँ, मैं ऐसा हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ जहाँ पर टर्शरी केयर हो जाए. मतलब टर्शरी केयर का मतलब ये होता है कि हर इमरजेंसी को एक्सेप्ट कर पाए, हर इमरजेंसी को ट्रीट कर पाए. ऐसा हॉस्पिटल्स नहीं है ऐसे लोकेलिटीज़ में. ये जो fully equipped quaternary ICUs plus emergency services खाली large cities में है. So आज की तारीख में if you ask me, is India equipped for emergency medical services? Definitely not. Definitely not. What is your view on the response time for शहरों में versus in the two-tier city or the villages?
सो दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ यू आस्क मी. रिस्पॉन्स टाइम, दैट सब कुछ जो डिपेंड होता है मेडिकल सर्विसेज में, इट इज बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स टाइम. रूरल एरिया में जो रिस्पॉन्स टाइम है वो इज वेरी वेरी लो. इट इज समवेयर अराउंड, दे आर डॉक्यूमेंटेशन ऐसा है कि वो 28-30 मिनट्स में पहुंचते हैं. दैट इज अ डॉक्यूमेंटेशन. लेकिन टुडे आज भी अगर आप जाओगे रूरल एरिया में, अगर फ़ोन करोगे तो आपको फ़ोन एम्बुलेंस आने तक मिनिमम 1 आवर चला जाता है, मिनिमम. दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल एम्बुलेंस आल्सो. नाउ रिमेंबर दिस, रूरल रिस्पॉन्स मतलब हमको एक फ़ोन नंबर हम डायल करेंगे. एक्जिस्टिंग फ़ोन नंबर जो हमारे पास है वो 108 है. जो हम लोग को कंट्री ने हमको दिया हुआ है 108 है वो. अगर हम 108 डायल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हर कोने में एक एम्बुलेंस खड़ा है, ऐसा नहीं है. इवन इन अर्बन, अभी लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मुंबई. मुंबई में आपको कितना लगता है, कितना एम्बुलेंस होगा 108 में? क्या लगता है आपको, कितना होना चाहिए आपको लगता है? 10, 20, 50, 100 कितना होना चाहिए? Yeah, per at least 500 people. एटलीस्ट 2-3 होना चाहिए ना. हमारे पास पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है? हमारे पास टोटल एम्बुलेंसेस इन द सिटी ऑफ मुंबई 30 के ऊपर नहीं होगा. एक्चुअली जो 108 से आता है. हुँ? तो एक 2016 ऑनवर्ड्स इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज उभर के आने चालू हुआ है. लेकिन ये जो पॉलिसी है जहाँ पर एम्बुलेंसेस फ्री में आनी चाहिए, द वे दैट द एम्बुलेंस शुड रीच योर हाउस इन टाइम, दैट हैज़ कम ओनली इन द लास्ट 1 और 2 ईयर्स. 1-2 साल में एम्बुलेंसेस आने चालू हो गए हैं जो 108 नंबर से हम बुला सकते हैं. अभी फुल मुंबई में, फुल महाराष्ट्र में टोटल एम्बुलेंसेस 233 है. हाँ, वैसे अगर देखोगे तो हमारे पास जो एम्बुलेंस आ रहे हैं ये सब प्राइवेट वाले एम्बुलेंस आते हैं. ये दे आर नॉट द एम्बुलेंसेस दैट आर बाय द गवर्नमेंट. एट द एंड ऑफ द डे हमको गवर्नमेंट सर्विसेज चाहिए जहाँ पर एम्बुलेंसेज आ जाए, वेल इक्विप्ड हो जाए. खाली एम्बुलेंस नहीं चाहिए हमको, वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस चाहिए. व्हेन आई से वेल इक्विप्ड मींस दे कैन टेक केयर ऑफ एवरी इमरजेंसी इनसाइड द एम्बुलेंस. वैसा एम्बुलेंस चाहिए जो इमरजेंसी फर्स्ट एड केयर दे. ऐसे एम्बुलेंसेस काफ़ी काफ़ी कम है. इट्स नॉट देयर ऑल अक्रॉस. सो रूरल सर्विसेज में अगर पूछोगे, से हम गणपति फूल में पहुंचे और गणपति फूल में हमको एक हार्ट अटैक आ गया, आपको नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ पर हमको पहुंचना है वो एक कैथ लैब वाली फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पर हम एंजियोग्राफी कर पाए. दैट इज द पॉइंट. 90 मिनट्स के अंदर अंदर हमको ऐसा पेशेंट्स का आर्टरी खोलना पड़ता है. 90 मिनट्स के अंदर अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि वो 90 मिनट्स के अंदर अंदर ऐसे जगह पे आ जाए जहाँ पर एंजियोप्लास्टी हो जाए. तो फॉरगेट अबाउट दिस, फॉरगेट अबाउट बिहार, झारखंड ले लो, वो सब एरिया में तो हिली टेरेट्रेन है, वो हिली टेरेन है, वहाँ पर तो पहुँचना ही मुश्किल हो जाता है. सो इफ यू आस्क मी रिस्पॉन्स टाइम इन रूरल एरियाज, वो तो बहुत ही ज़्यादा कम है. जो फिगर्स हमको बताए उससे बहुत ज़्यादा है टाइमिंग्स वहाँ पहुँचने तक. और रिमेंबर दिस, वहाँ पहुँचने के बाद फिर उसके बाद 10 मिनट फर्स्ट एड पीरियड होता है, उसके बाद ये वापस पहुँच जाते हैं. जब हम रिस्पॉन्स टाइम बोलते हैं, इसको हम कंपेयर करेंगे अब्रॉड के साथ, द डॉक्यूमेंटेड रिस्पॉन्स टाइम इज 7 मिनट्स. 7 minutes, and in the best of the best setups it is 5 minutes. So 7 minutes में नियर बाय एम्बुलेंस वहां पर पहुंच जाता है. दिस इज नॉट द सीन इन इंडिया, डेफिनेटली नॉट. एंड रूरल एरियाज में इट इज इवन वर्स. I was in a total disbelief when I got to know that 90% of people die in the first hour of reporting to the emergency, and that's probably the golden hour. Now, what are the layers involved here? As you mentioned that first aid, then you mentioned the ambulance, then you mentioned the primary care that you have to take care of. So, कहाँ पे हम weak हो रहे हैं according to you? ओके, सो अभी लेट मी एक्सप्लेन टू यू. अभी समझ लो एक पर्सन को एक हार्ट अटैक अगर आ जाए, अभी जैसे मैंने आपको बताया हार्ट अटैक अगर आ गया तो विद इन 90 मिनट्स हम लोग को वो आर्टरी खोलना पड़ता है. वो आर्टरी अगर खुला नहीं तो लाइफ लॉन्ग के लिए उसको हार्ट का प्रॉब्लम होगा. इनफैक्ट द चांसेस ऑफ डेथ आर ऑल्सो वेरी वेरी हाई 90 मिनट्स के अंदर अंदर. तो इसका मतलब क्या हो गया, जो वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस जहाँ से जाती है वो क्या करती है, वो वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस वहाँ पर पहुंचने के बाद दे गिव द पर्सन प्राइमरी ट्रीटमेंट देयर. जैसे कि एक ब्लड थिनर हो गया, एक च्यूएबल एस्पिरिन हो गया, वो लोग तभी का तभी वो लोग वहाँ पर दे देते हैं. ब्लड प्रेशर पल्स देखते हैं और वहाँ से फ़ोन कॉल करते हैं हमको हमारे हॉस्पिटल्स में कि बी प्रिपेयर्ड, वी हैव अ पेशेंट कमिंग इन प्लेस, दिस पेशेंट विल रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट. वो ईसीजी करके ऑलरेडी हमको रिले कर लेते हैं, बताते हैं कि भाई ईसीजी में ऐसा दिख रहा है एंड वी विल नीड टू ओपन द आर्टरी. तो वी आर रेडी नाउ. नहीं तो आप सोचिए अगर आप हमको ये फ़ोन कॉल नहीं आए तो हम वी आर नॉट रेडी. पेशेंट पहुंच जाएगा इमरजेंसी रूम में, हम लोग को आइडिया नहीं रहेगा हमको क्या करना है. जब तक कि हम कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाएंगे, जब तक कि हमारा कैथ लैब रेडी होगा, अनदर 1 आवर विल गो. इसीलिए ये वेल इक्विप्ड इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स में क्या हो जाती है, इमीडिएटली दे विल रिले टू अस द प्रॉब्लम दैट इज कमिंग. ये हो गया हार्ट का. सिमिलरली स्ट्रोक में, अभी स्ट्रोक में आपको पता है कि स्ट्रोक में भी जैसे हम क्लॉट बस्टर मेडिसिन हार्ट में देते हैं, इवन इन द स्ट्रोक वी कैन गिव अ क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन इवन इन स्ट्रोक्स. ओके, नाउ वो जो क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन है उसको हम लोग को 4.5 आवर्स के अंदर देना पड़ता है. 4.5 आवर्स.
अभी व्हाट हैपेंस इन अ रेगुलर स्ट्रोक, अगर पेशेंट को थोड़ा सा ये साइड वीकनेस आ गया, बोलेगा रुक जाओ देखते हो जाएगा ठीक, मे बी इट इज सम स्मॉल, ठीक हो जाएगा, मेरा शुगर थोड़ा डाउन हो गया रहेगा, ऐसा समझ के पेशेंट घर पे बैठ जाते हैं। वो 1-2 घंटा वहीं चले जाते हैं। 2-3 घंटे के बाद जब एक हाथ काम नहीं कर रहा, तब उनको समझ में आता है कि अरे ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। हार्ट अटैक जैसे हम बोलते हैं वैसे ब्रेन अटैक हम सोचते नहीं है। ब्रेन अटैक इज इवन वर्स, क्योंकि ब्रेन अटैक एक बार आ गया तो लाइफ लॉन्ग के लिए आदमी पैरालाइज हो सकता है, लाइफ लॉन्ग के लिए फंक्शनली इनकेपेसिटेटेड हो सकता है, वो अपना काम नहीं कर पाएगा, वो रिमोट कंट्रोल ऑन नहीं कर पाएगा। हम लोग को वो फंक्शन तो चाहिए ही नहीं, हम लोग को फंक्शन ऐसा चाहिए कि भाई वो आगे चल के अपना बच्चे को उठा पाए। यू नो दैट इज व्हाट वी वांट। अगर वो करना हो तो हमारे इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज क्या करता है, वो वहां पर जाता है, वो स्ट्रोक आइडेंटिफाई करता है, वो लोग आइडेंटिफाई करके हमको बोलता है कि सीटी स्कैन जल्दी करना पड़ेगा, और उन लोग ऐसा सेंटर पे नहीं जाते जहाँ पर सीटी स्कैन ना हो, वो लोग ऐसा सेंटर पे लेके जाते हैं जहाँ पर सीटी स्कैन पॉसिबल है, एंड देन वी कम टू दैट सेंटर एंड इमीडिएटली सीटी स्कैन इज डन एंड दोज पेशेंट्स आर थ्रोम्बोलाइज, जिसको हम थ्रोम्बोलाइज बोलते हैं, क्लॉट बस्टर बोलते हैं जिसे, वो हम दवा दे देते हैं ताकि इमीडिएटली दैट इफेक्ट विल कम इन। सो दिस इज इन एवरी केस। अभी ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कर लो, जैसे कि अभी एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट जब भी हो जाता है, हमारा ब्रेन जो है ना, हमारा ब्रेन इज हैविंग, ये जो हमने स्कल के अंदर हमारे पास खाली 3 चीज़ है। एक ब्रेन का एक फ्लूइड है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, एक ब्लड है और एक ब्रेन मैटर है, और ये सब एक क्लोज्ड बॉक्स के अंदर है। जिसको हम स्कल बोलते हैं। स्कल के अंदर ब्रेन है, सीएसएफ है जिसको हम ब्रेन फ्लूइड बोलते हैं, एंड ब्लड इज देयर। इसमें से एक भी कंपोनेंट अगर ज़्यादा हो गया तो उसको एक्सपैंड होने की जगह नहीं है, मतलब वो पेशेंट मरने का चांस है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि तुरंत जब भी ऐसा एक ब्लीडिंग हो जाए ब्रेन के अंदर, हमको ऑपरेट करके वो ब्लीडिंग को ओपन करना पड़ेगा, और हमको देखना पड़ेगा कि भाई जगह मिल जाए ब्रेन को सूजने के लिए। ये कभी करना पड़ेगा इमीडिएटली इन एन आवर्स टाइम। अभी आप सोचो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में अगर किसी को अगर कुछ हो गया, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में, या आप समझ लो पूना एक्सप्रेस इन मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे में अगर हो गया, अगर हमारे पास हेलीकॉप्टर फैसिलिटी नहीं है, यार एम्बुलेंस तैनात नहीं है, हर 30 मिनट में एम्बुलेंस तैनात नहीं है, तो हम कैसे ये कर पाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल दैट द पर्सन कैन कम एंड गेट सर्विस इमीडिएटली। इसीलिए इट इज वेरी एसेंशियल दैट द person is not only lifted from that particular place but also taken to a ready ICU or ready hospital with everything facilities that is possible। कोई भी हॉस्पिटल जाके कोई फायदा नहीं है, he has to go to a hospital that is ready for these services। इसीलिए emergency medical services can work only with a good networking। उसके global positioning systems, उसके vehicle allocation systems, उसका communication skills, the equipment that is lying inside the ambulance। एक ambulance ऐसा होना चाहिए कि भाई ICU जैसा हो जाए, तब जाके हमारी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज विल गेट बेटर। 2 टाइप के एम्बुलेंस होते हैं, एक जिसको बोलते हैं एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, दूसरा बोलते हैं बीएलएस एम्बुलेंस, बेसिक लाइफ सपोर्ट। हमको एडवांस लाइफ सपोर्ट का जरूरत पड़ता है ऐसे पेशेंट्स के लिए। बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में कुछ नहीं होता, और ये एम्बुलेंसेज शुड बी हैविंग अ ट्रेन्ड इमरजेंसी मेडिकल डॉक्टर। ये सबसे बड़ा इशू है। इमरजेंसी मेडिकल डॉक्टर वो होता है जिसने इमरजेंसी मेडिकल सर्विस का कोई ट्रेनिंग किया हो, जिसने एसीएलएस बीएलएस किया हो। ऐसा नहीं है कि वो एलोपैथिक डॉक्टर रहे, वो यूनानी मेडिसिन, होम्योपैथी डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने एएलएस, बीएलएस और एसीएलएस, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, एडवांस लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग किया होना चाहिए। जब उसने वो किया रहता है, ही कैन हैंडल मोस्ट ऑफ द इमरजेंसीज एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट so that the patient can be safely brought in time to a tertiary care center। Now, this you widely talked about what happens when the case comes to the doctor. लेकिन उस जगह पे जहाँ bystanders है witnessing all this, what is the primary action that one should take? Because this is all about the taking action on time and correctly. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कैसे वाले केसेस में बाईस्टैंडर्स को कैसे रिएक्ट करना चाहिए? सो दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। सो हर डिजीज में एक अलग रिएक्शन होना चाहिए, बट क्लासिकली देर आर फ्यू थिंग्स हमको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ स्ट्रोक। अगर पैरालिटिक अटैक अगर आता है तो दिखने में बहुत ही डिफिकल्ट है किसी को भी। सडनली मुंह ये टेढ़ा हो जाता है, एक हाथ काम करना बंद हो जाता है, तो बाईस्टैंडर जो रहता है वो देख के डर जाता है। पहली बात तो डरना नहीं है, सबसे पहले डरना नहीं है। एंड इम्पॉर्टेंटली ये अगर देखोगे तो नोटिस करो कि क्या होता है। जैसे कि स्ट्रोक में वेरी सिंपल नोटिस करना, FAST, मतलब अगर फेशियल एसिमेट्री हो, यू कैन टेल देम टू स्माइल एंड द स्माइल इज नॉट प्रॉपर, सिमेट्री नहीं है स्माइलिंग में। नहीं तो हमने बोला दोनों हाथ ऊपर रखो, एक हाथ ऐसे नीचे चला गया, ओके, एनी ऑफ दीज थिंग्स, स्पीच बात करने को नहीं हो रहा बराबर से, हाँ, देन द T इज अ टाइम टू कॉल, इमीडिएटली कॉल द इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज to come and pick up this patient। That is the first response।
you can help many people by doing this as your first response. Just calling up the person, the 108 ambulance or the ambulance that you know, a well-equipped ambulance to come and pick up this patient. ये सबसे important बात है. पहले ये करो. ओके, उसके बाद समझ लो आपको स्ट्रोक में तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन पेशेंट को एक जगह पे लेटा के उसके जो शर्ट, कॉलर, बटन्स वगैरह सब ओपन करके रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ़ ही इज़ वॉमिटिंग, एक बाजू में उसको लेटा के रखना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है. हाँ, अगर वो सीजर कर रहा है, उसके हाथ में चाबी देना, उसको सूंघाना, कुछ भी वो सब नहीं करना चाहिए. We should just lie down the person in one side so that he doesn't hurt oneself. और if he vomits outside. ये चोकिंग प्रिवेंट करना ज़रूरी होता है. तो वो हम करते हैं स्ट्रोक में. अभी कार्डियक सिस्टम में क्या करना है? अभी समझ लो हार्ट अटैक आ गया. हार्ट अटैक को भी रिकॉग्नाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जैसे कि स्वेटिंग हो गया, एक तरीके से घबराहट हो गया, ही इज़ फीलिंग धड़-धड़ हाथ में पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, ओके, और ही इज़ नॉट फीलिंग ओके एट द होल ऑन द होल, ही हैज़ गॉट अ हिस्ट्री ऑफ फादर और मदर हैविंग सम प्रॉब्लम. ऐसे लोगों को हार्ट अटैक जल्दी रिकॉग्नाइज़ करके सिमिलरली इस पेशेंट के लिए भी इमीडिएटली इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को फ़ोन करना ज़रूरी है. आप वो टाइम पे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाओगे. वो टाइम पे इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू क्विकली कॉल द इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज एंड एट द सेम टाइम इफ यू हैव ब्लड प्रेशर एंड पल्स, जो आजकल बहुत सारे घरों में होते हैं, ब्लड प्रेशर लगा कि बीपी कितना है, पल्स कितना है और ऑक्सीजन कितना है, वो देख सकते हो मैक्सिमम. बट इंपॉर्टेंटली घर में अगर एस्पिरिन हो तो दैट एस्पिरिन कैन बी गिवन टू दिस पर्टिकुलर पेशेंट which will definitely help this patient to survive for a longer period of time. This is what you can do if you have a cardiac system. If there is trauma, अगर trauma है तो ज़्यादा सोचना नहीं है. Immediately What is the definition of trauma? What are the cases do you trauma मतलब समझ, so for example there is a road traffic accident, okay, और नहीं तो घर पे वो ऊपर चढ़ रही थी एंड माले से गिर गई है. ऐसा अगर गिर गई तो there is a head injury अगर हुआ है, okay, at that time ज़्यादा कुछ करना नहीं है. Immediately let the person remain in that same position. जैसे कि अगर समझ लो वो ऊपर से गिर गया, उसको उठा के किधर रखने की कोशिश ना करो, ओके, बिकॉज़ ऐसा हो सकता है कि स्पाइन डैमेज हुआ है, और अगर स्पाइन डैमेज हुआ है और हमने एक अलग तरीके से उठाने की कोशिश किया तो स्पाइन डिस्लोकेट हो जाएगा, और डिस्लोकेशन होते ही पेशेंट पैरालाइज हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड? समझ लो सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम है. सर्वाइकल स्पाइन ये वाली स्पाइन होती है जो नेक के अंदर होती है. वो अगर अपसेट हो गया है, वो गिरने के बाद गिर गया 5 फीट के ऊपर से भी अगर गिरा तो सर्वाइकल स्पाइन कैन गेट डैमेज्ड. 5 फीट ज़्यादा नहीं है. 5 फीट, वही माला में ऊपर से गिर भी गए हो तो दैट कैन गेट डैमेज्ड. अगर वैसा डैमेज अगर हुआ, ओके, और हमने पेशेंट को उठा के एक सोफा पे रख दिया, ओके, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट स्पाइनल इंजरी इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पेशेंट कैन विल बी पैरालाइज्ड राइट फ्रॉम अप टू डाउन फॉर लाइफ. और ऐसा हुआ है कि पेशेंट का रिलेटिव्स, वो लोग मानते हैं कि भाई हमको उसको ठीक ही करना है. पेशेंट गिरा है, पेशेंट गिरने के बाद उनको नहीं समझ में आया कि पेशेंट का हाथ और पैर नहीं हिल रहा है क्योंकि स्पाइन में डैमेज हो रहा है. उन्होंने क्या किया है, पेशेंट को उठाया है और चेयर पे रखा हुआ है, और चेयर पे उसको हवा-ववा दे रहे हैं, सब कर रहे हैं. ऐसा उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया है कि वो गिर गए ऊपर से, वो हाथ पैर हिला नहीं रही है, उनको हमने सोफ़ा पे लिया है, हाँ, और हमने हमने उसको हवा मार के हम उसको ठीक कर रहे हैं. अब पसीना-वसीना ठीक हो रहा है उसका, वो होश में है लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही है. अब इसने क्या कर दिया इसमें? इसमें उन्होंने स्पाइन को अल्टर कर लिया, पेशेंट को बिठा दिया, दे हैव कॉज़्ड डैमेज. तो अगर ट्रॉमा में गिर जाए तो कुछ नहीं करना है. लेट द पर्सन रिमेन लाइक द वे इट इज, कॉल द एम्बुलेंस सर्विसेज, उनको आने दो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. 2% of only people are trained for the CPR. Do you think that CPR training will help us take care of such kind of cases more better way? Yes. So when you have a cardiac problem, जैसे कि छाती में दर्द हो रहा है एंड सडनली पर्सन हैज कोलैप्स्ड डाउन, जैसे कि अगर आप जिम में जाओगे, इफ यू गो टू द जिम, यू हैव मेनी पीपल ऑन द ट्रेडमिल एंड दे सडनली कोलैप्स. ये बहुत बार होता है जिम्स में. आजकल बहुत सारे सुनते हैं कि ही इज ड्राइविंग, इज रनिंग ऑन द ट्रेडमिल एंड सडनली ही फील्स अनरिस्पॉन्सिव एंड ही फॉल्स डाउन. दिस हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स, इजंट इट? सो एट दैट टाइम द ओनली थिंग दैट कैन make this person survive is actually bystander CPR. Now what is bystander CPR? It's very simple. बहुत ही simple है bystander CPR. हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है. हमको पेशेंट के ऊपर, छाती के ऊपर अपना वन हैंड और अदर हैंड रखना है, और ब्रेस्ट बोन जिसको बोलते हैं, ये जो बोन होती है इसको ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, उसके ऊपर हमको हाथ रखना है. एंड यू टू जस्ट पुश हार्ड एंड पुश फास्ट. पुश हार्ड एंड पुश फास्ट. हमने ऐसा सुना है कि माउथ टू माउथ देना, जरूरत नहीं है. ये माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन ये सब का कोई जरूरत ही नहीं है. जस्ट पुश हार्ड एंड पुश फास्ट. हम बोलते हैं ऑन एन एवरेज मिनट एक 100 टाइम्स पुश करना है.
पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। मतलब अगर आप ऊपर खड़े तो 1 2 3 4 करके पुश करना है, पुश एंड रिलीज, पुश एंड रिलीज, पुश एंड रिलीज 100 टाइम्स इन 1 मिनट। अगर ये हम कर पाएंगे, देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड that patients will survive. There's a very high likelihood patients will survive till the emergency medical services come. You know, I'll tell you one thing, when patients have heart attacks, no, many of them, only 10% of them actually reach the hospital with this kind of situation. So 90% of them are dying because bystander CPR हो नहीं रहा है. And अगर मैं चाहूँ तो everybody in the country, everybody in the world should actually know bystander CPR. इसमें कुछ है नहीं. इसमें you have to just figure out that the patient has suddenly collapsed. और कुछ करना ही नहीं है, सीधा CPR चालू करना है. खाली push hard and push fast. Most often क्या होता है, when you do push hard and push fast, in some time patient will wake up. In some time patient will start breathing and you will probably save a life. This is something that is very very important over here. Another thing is, if you go to the malls, अगर आप मॉल्स में जाओगे, अभी के मॉल्स में, अभी के जो नए नए मॉल्स मुंबई सिटी में आए हैं, तो यू विल फाइंड अ स्मॉल डिवाइस इन रेड कलर कॉल्ड एज एईडी. आप देखोगे मॉल्स में, देखोगे रेलवे स्टेशन में, देखोगे एयरपोर्ट पे, देखोगे इट्स कॉल्ड एईडी. ओके, आधे जन को पता ही नहीं है होता क्या है. So that AED is kept on the wall. It is said that if a person is fallen down, open that AED and get that machine to you. उसमें सब कुछ लिखा है करना क्या है. उसमें सब कुछ लिखा है, what to do. For example, उसमें लिखा हुआ रहेगा, take the sticker, apply it over on the chest, take the sticker, apply on the other chest. वो बोलता है, वो AED जब ऑन करेंगे ना, वो बोलता है कि after that stand aside, analyzing rhythm. It says that and then it gives shock. Shock जिसको बोलते हैं, that saves life. हमको कुछ नहीं करना है उसमें, वो हमको बताएगा क्या करना है. Okay, unfortunately, this is what the EMS needs to do. EMS जब भी वहां से हमारे पास आता है पेशेंट के पास, तभी it analyzes, the EMS emergency medical services analyze the rhythm, जो हार्ट का रिदम है. और हार्ट का रिदम अगर एबनॉर्मल रहे तो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है उसको शॉक देना. ये शॉक आना, उसको पहले वहां से इधर आना, पहुंचना पड़ेगा ना, और इधर पहुंचते पहुंचते पेशेंट भी जिंदा होना चाहिए. सो ये बायस्टैंडर CPR चालू है और फिर वो आता है और फिर हम शॉक देते हैं, पेशेंट विल सर्वाइव. Similarly, if you are in a mall और मॉल में patient has fallen down, you have first called for help and done bystander CPR. You find the device. All you have to do is get the device to the head end of this patient. Tell somebody to get it. And उसमें सब कुछ लिखा है कि करना कैसा है. ठंडे दिमाग से अगर करोगे तो हम शॉक दे पाएंगे, वहां कब आएंगे. Bystanders are often hesitant कि वो जब भी ऐसे इमरजेंसी केसेस आते हैं, वो लोग कतराते हैं थोड़ा. They don't get involved in it. Is it because of the policies? Is it because of the lack of knowledge? Like, there are few government laws like Good Samaritans. So, what would you suggest to the people that in case to avoid such complications, that how safe they are, even if they are helping some complicated cases? So, first of all, it's very important to understand humanity, isn't it? If there is a person who's fallen down, it's very important to save that life. That is the first thing that will come to anybody's mind. But yes, there have been issues where people feel that अरे अगर मैंने इसको हॉस्पिटल लेके गया तो मुझे पुलिस क्वेश्चन कर लेंगे, या मेरे को उधर बहुत झमेला हो जाएगा, ये सब मन में आता है. बट ऑलमोस्ट नाउ दिस विल कपल ऑफ इयर्स सिंस वी हैव पास समथिंग कॉल्ड एज अ गुड समैरिटन लॉ. ओके, ये हमारे पार्लियामेंट में पास भी हो चुका है, एक बिल के तौर पे पास भी हो चुका है, गुड समैरिटन लॉ. अब ये गुड समैरिटन लॉ क्या होता है, इसमें ऐसा बोला गया है कि समझ लो कोई इमरजेंसी घटा, आप वो पेशेंट को इमरजेंसी सर्विस में लेके गए, तो आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, आपको कोई भी बिल भरने की जरूरत नहीं है. वो पेशेंट का फर्स्ट एड हो गया, वो पेशेंट का इमरजेंसी केयर हो गया, दैट हॉस्पिटल विल डू फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चंस. कोई भी पुलिस आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, ना आपको इंटरोगेट कर सकता है. दिस इज गुड समैरिटन लॉ. इसका मतलब ये है कि बेझिझक आप पेशेंट को उठा के नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेके जा सकते हो, एंड देयर विल बी एब्सोल्युटली नथिंग wrong in doing that. This is called as Good Samaritan law. It is good that our country has already passed this law as a bill, and it is for everyone to understand that nobody will question you if you are going to help somebody. This is very very important for us to understand. चलो, पेशेंट हॉस्पिटल तक जब भी आ जाता है एंड he gets into the ICU, what kind of most amount of cases in ICU that you come across to? So ICU is a mixed bag. There's a lot of things. आज की तारीख में बहुत सारे ICU, स्पेशलिटी ICUs आ गए हैं. बहुत सारे ICU, जैसे कि हॉस्पिटल में इंटेंसिव केयर यूनिट सुना रहेगा आपने, मेडिकल इंटेंसिव केयर MICU सुना रहेगा आपने, सर्जिकल इंटेंसिव केयर यूनिट सुना रहेगा आपने, ICCU. ICCU कॉर्नरी केयर यूनिट सुना रहेगा, ITU सुना रहेगा, इंटेंसिव ट्रॉमा यूनिट सुना रहेगा, रेस्पिरेटरी IRCU,
सो एवरी आईसीयू इज नाउ स्पेशलाइज्ड। इनिशियली बहुत पहले पहले इंटेंसिव केयर यूनिट मतलब वो होता है जो पेशेंट इज वेरी वेरी सिक, उस पेशेंट को आईसीयू में लाएं, या ऐसा था। लेकिन अभी आईसीयू में लाने के बाद हम उसको बाइफरकेट कर देते हैं, हम उनको सर्जिकल आईसीयू में भेजते हैं। अगर समझ लो सर्जिकल प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल पेशेंट आ गया है, पेशेंट को ट्रॉमा हो गया है और पेट में से ब्लीडिंग हो रहा है, तो दिस पेशेंट विल गो टू सर्जिकल आईसीयू, वो ऑपरेट होके आएगा और फिर वो ठीक हो जाएगा, सर्जिकल आईसीयू। सिमिलरली रिकवरी रूम और सर्जिकल आईसीयू बोलते हैं। सर्जिकल आईसीयू क्या होता है कि भाई पेशेंट कार्डियक सर्जरी हुआ है, अभी उनको देखभाल करना है आईसीयू में 4-5 डेज के लिए, तो उसको सर्जिकल आईसीयू में हम शिफ्ट करते हैं। अभी समझ लो पेशेंट को पॉइजनिंग हो गया है या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको हम मेडिकल आईसीयू में डाल देते हैं। हम केसेस को पूरा सेग्रीगेट करते हैं। और ये क्यों करते हैं हम लोग? ये इसके लिए करते हैं ताकि हमको पता है कि ये आईसीयू में खाली यही केसेस होने चाहिए, तो वो स्पेशलाइज्ड आईसीयू बन जाता है। वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के नर्स ट्रेंड होते हैं वो केसेस देखने के लिए। जैसे कि अभी कार्डियोवास्कुलर थोरेसिक सर्जरी, जैसे सीएबीजी बाईपास ऑपरेशन के बाद अगर आए, तो नर्सेस और डॉक्टर्स आर ट्रेन्ड फॉर दैट ओनली, तो यू आर सर्टेन दैट द आउटकम्स ठीक हो जाएंगे। अगर समझ लो पेशेंट एकदम इन्फेक्टेड है, जैसे कि आपने सुना रहेगा कोविड करके बीमारी आया था, सबको पता है कोविड क्या होता है। जब कोविड आया तो हमने क्या किया? कोविड के लिए स्पेसिफिक आईसीयूज बने, आइसोलेशन आईसीयूज। तो वैसे हमारे पास आइसोलेशन आईसीयूज भी होते हैं, जहाँ पर मीजल्स हो गया, टीबी हो गया, कोविड हो गया, ये सब को एक जगह पे रखते हैं ताकि बाकी सब पेशेंट सुरक्षित रहे। सो it is we get all kind of cases, right from the respiratory tract infections, urinary tract infections, sepsis जिसको बोलते हैं, which is the biggest killer in our country, sepsis। sepsis का मतलब ये होता है कि इन्फेक्शन होने की वजह से बॉडी के सिस्टम से वायर हो जाते हैं, इसको हम sepsis बोलते हैं। एंड sepsis is something that is killing many people। of course initial mortality sepsis का 60-70% होता था। sepsis की वजह से पेशेंट मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर में चला जाता है। मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर का मतलब ये है कि लंग्स, लिवर, ब्रेन, हार्ट, एवरीथिंग इज नॉट, नथिंग इज वर्किंग प्रॉपर्ली। दिस इज कॉल्ड मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर। जब ऐसा जब ये हो जाता है तो पेशेंट की चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज वेरी लो। तो अभी आजकल सेप्सिस की मोर्टेलिटी भी कम होने चालू हो गई है। सो वी आर डूइंग वेरी वेल इन विद रिस्पेक्ट टू ट्रीटमेंट, बट वी नीड टू गेट टू ट्रीटमेंट फर्स्ट फॉर दैट। There is this condition called as antimicrobial resistance that the body has developed due to the antibiotics and etc. intake. In fact, I've often seen कि हमारे friends में ही कुछ भी छोटा सा flu हो गया, they popped a pill, antibiotics by themselves. What do you think when a person is in a critical condition and when they are showing the resistance for such kind of medicine, how much it interferes with the treatment? It is the biggest problem as of now इंटेंसिव केयर में। अगर आप किसने पूछा कि आउटकम्स के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही है, जिसको हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं, AMR। ओके, AMR। यू नो व्हाट नॉर्मली एवरीबडी नोज इन द एंटायर कोविड इज एजी, नो? Yeah. एजी, सब लोग एक टैबलेट एजी 500 मिलीग्राम ले लेते हैं, सबको पता है। एजी, एजी ले लेते हैं। और व्हाट हैपेंस टू दैट एजी? नाउ व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अ कॉमन कोल्ड? इज वायरल। इट्स अ वायरल इन्फेक्शन। वायरस के लिए कोई दवा नहीं है। वायरस के लिए कोई भी दवा नहीं है। हल्दी-वल्दी, हाँ, ये गर्म पानी पी लेना, रेस्ट करना, पानी पीना, दिस इज व्हाट यू डू फॉर अ वायरल इन्फेक्शन। अगर पुकार हो गया तो पैरासिटामोल ले लेते हैं, राइट? लेकिन लोग एजिथ्रोमाइसिन ले लेते हैं। जरा सा भी अगर कोल्ड कॉफ फीवर अगर हो गया तो ऑगमेंटिन ले लेते हैं। ये सब बहुत ही हाई सेलिंग मेडिसिन है, ये ले लेते हैं। अभी ये होता क्या है, समझ लो बॉडी की जरूरत नहीं है, तो व्हाट हैपेंस इज वी पास इट थ्रू आवर बॉडी एंड इट गोज आउट थ्रू आवर यूरिन। ये यूरिन जाता है किधर? ग्राउंड वाटर में। जब ये ग्राउंड वाटर में जाता है तो छोटे छोटे बैक्टीरिया जो ग्राउंड में है, दे गेट एक्सपोज टू स्मॉल माइक्रो क्वांटिटीज ऑफ दिस एंटीबायोटिक। ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया को समझ में आ जाता है कि ये छोटा एंटीबायोटिक आ रहा है, चलो आई आई विल मेक अ रेजिस्टेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इट। समझ में आ रहा है? तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। बाद में ये ई कोलाई या ये बैक्टीरिया इज कमिंग बैक टू अस, ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो जाता है वो। जब वो रेजिस्टेंट हो जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स है हम यूज नहीं कर पाते। आज के तारीख में जब पेशेंट को सेप्सिस होता है तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वेपन होता है एंटीबायोटिक। सबसे इंपॉर्टेंट। सेप्सिस अगर इन्फेक्शन अगर हुआ और पेशेंट का ब्लड प्रेशर डाउन है, पेशेंट का पल्स रेट फास्ट है, पेशेंट इज नॉट डूइंग, यूरिन बराबर नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक अगर बराबर नहीं रहा तो पेशेंट नहीं बचेगा, पेशेंट नहीं बचेगा, राइट? और अभी की तारीख में अगर हमारे पास 20 एंटीबायोटिक है, 18 रेजिस्टेंस आ जाते हैं ऐसा डिफिकल्ट केसेस में। खाली हमारे पास एक या दो एंटीबायोटिक्स होते हैं, और वो जो एक और दो एंटीबायोटिक्स हम यूज कर रहे हैं, या तो फिर वो बहुत महंगा है या नहीं तो वो दूसरे साइड इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो हमारी जो यूजुअल एंटीबायोटिक्स है, जब मैंने मेरे प्रैक्टिस चालू किया 96 97 में, एट दैट टाइम हम एंटीबायोटिक्स एकदम सिंपल एंटीबायोटिक्स यूज करते थे। लेकिन आज के तारीख में हम इतने कॉम्प्लेक्स, इतने हाई वैरायटी के एंटीबायोटिक्स यूज कर रहे हैं बिकॉज रेजिस्टेंस पैटर्न डेवलप हुआ है। इसको ही हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस।
पेशेंट्स, अब पेशेंट्स आके बोलते हैं आपने तो एंटीबायोटिक दिया लेकिन मेरा पेशेंट ठीक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस चालू हुआ है। ये खाली इधर की बात नहीं है, इवन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल नर्सिंग होम्स, जो हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल्स में खैर हमारे पास गाइडलाइंस है, हमको बोला जाता है कि ये एंटीबायोटिक ना यूज़ करें। तो हमारे जैसे फोर्टिस हॉस्पिटल में अगर मैंने एक हायर एंटीबायोटिक अगर यूज़ कर लिया तो मुझे लिखना पड़ता है मैंने क्यों यूज़ किया है ये, और 4 दूसरे डॉक्टर्स जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी में बैठे हुए हैं, उन लोग पूछते हैं मुझे ये क्यों लिखा आपने? समझ में आ रहा है? तो मैं आई डू नॉट प्रिस्क्राइब इट, तो वेरी जुडिशियस यूज़ होता है। लेकिन जब भी नर्सिंग होम में चले जाते हो तो वहाँ पर कोई जुडिशियस यूज़ होता नहीं है। सो पेशेंट आया, चलो यार एक एंटीबायोटिक लगा दो। पेशेंट को कुछ ज़रूरत भी नहीं रहता, फिर भी एक एंटीबायोटिक चालू रहता है। दैट लीड्स टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। So there is already a patient who is in ICU, who is very critical condition. You are trying to treat. He has developed this resistance for the medicine. How long do you take to figure out that he's showing the resistance for the? तो दैट्स अ वेरी मेडिकल क्वेश्चन बट आई स्टिल ट्राई टू आंसर दिस। जब भी एक पेशेंट को एक इन्फेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, वेरेवर देयर इज द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल समझ लो निमोनिया है पेशेंट को, तो उसका सोर्स हो गया लंग्स, तो हम लंग्स से एक स्पेसिमेन निकालने की कोशिश करते हैं जिसको हम ब्रोंकोस्कोपी बोलते हैं। ब्रोंकोस्कोपी करके हम निकाल देते हैं वो स्पेसिमेन। अगर हमको लगता है कि वो लंग्स से निकल के ब्लड में गया है तो हम ब्लड से निकालते हैं और उसको हम टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। इन अर्बन कंट्री सिटीज लाइक मुंबई हमारे पास पीसीआर बेस्ड सिस्टम्स है जहाँ पर हम लोग को दूसरा दिन, नेक्स्ट डे हमको पता चल जाता है, एक्चुअली विद इन सम आवर्स, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट सैंपल ठीक होने के लिए वो कम से कम एक 12 आवर्स टू 24 आवर्स जाता है। उसमें हमको पता चल जाता है कि ये टाइप का बैक्टीरिया है और ये टाइप का रेजिस्टेंस है। लेकिन ये एंटीबायोटिक काम करेगा कि नहीं ये पता करने के लिए 3 दिन चला जाता है। ओके, 3 टू 4 डेज मिनिमम जाता है। सो ऑन एन एवरेज टू फिगर आउट एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है कि नहीं, ये 3 या 4 दिन चला जाता है। तो आप समझो कि अगर समझ लो कोई पेशेंट अगर आ गया, एकदम लो ब्लड प्रेशर है, वेरी डिफिकल्ट है, वेरी क्रिटिकल है, तो जो भी डॉक्टर उसको बचाना चाहता है वो टॉप का एंटीबायोटिक्स यूज करेगा, क्योंकि हमारा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैटर्न हमारी सिटी में वेरी हाई है। एक चीज याद रखो, जब मैंने एक बार एक स्टडी किया था कि स्टूल सैंपल्स, जो नॉर्मल लोगों के स्टूल सैंपल्स चेक किए थे, उसमें मुझे जो बैक्टीरिया ग्रो हुआ है, जो नॉर्मल नॉर्मल स्टूल सैंपल्स, उसमें मुझे पता चला कि 50% को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। मतलब हम 2 जन बैठे हैं यहाँ पर, मतलब आप में से, हम लोग दोनों में से एक के स्टूल में बैक्टीरिया ऐसा है जो रेजिस्टेंट हो। And it has got nothing to do even if I'm not used to antibiotics. Yes, that is because most of our groundwater is coming, जैसे आपको बताया, the groundwater is coming, that groundwater is drunk by us and that then goes into our body. ICU name itself is very scary. I'm sorry to ask you if it might sound stupid, but when a patient is in ICU, is it something like he's close to death? Yes, so when a person is in the intensive care unit, he needs a lot of life support systems, no doubt about it. So a good proportion of patients, at least 50% of those patients who are entering into the ICU have a high chance of death. इनके mortality rate, अभी sepsis पकड़ लो, sepsis के mortality rate on an average 40% है, मतलब 100 में से 40 जन मरने के चांसेस होते हैं। अगर पेशेंट को स्ट्रोक अगर हो गया तो अ गुड नंबर, वेरी लार्ज स्ट्रोक अगर हो गया तो 50% चांसेस ऑफ डेथ होता है। पेशेंट को इंट्रैक्टेबल ब्लीड, अगर लिवर सेल फेलियर के साथ आया, हमने लिवर नहीं दिया, उनको नया लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करके दिया, तो 100% चांसेस है डेथ का। So yes, they are very, very close to death. Very, very close to death. It's a very difficult condition when a person comes into intensive care unit. Very difficult, yes. This sounds nothing less than a fight on a border. मुझे आपसे पूछना है कि in your career, I'm sure the biggest moment is when you have to take the quick decisions. What is that one decision that has kind of stayed with you, which you like to go back, reflect, and you kind of feel the sense of satisfaction? Because you must be taking hundreds of decisions, every single day in a very short amount of time. So, what is that one particular decision that has kind of, put a big sigh of relief with you? So there have been many such decisions. मैं ऐसे बोलूँगा कि मेरे पास इतने सारे decisions मैं बता सकता हूँ आपको, which has made so much of a difference. When I look back, I feel wow, this is something which made the big difference in life. So there was one patient who came in and could not breathe and was sitting upright, just could not breathe, just could not breathe. Already दूसरा हॉस्पिटल में जाकर आ चुका था,
नर्सिंग होम में गया था और फिर हमारे पास आया था, एंड जस्ट कुड नॉट ब्रीथ, ब्रीदिंग ही नहीं हो रहा, उसे ब्रीदिंग ही नहीं हो रहा है। एंड इट वाज अ संडे मॉर्निंग। नॉर्मली संडे मॉर्निंग को ना मुझे ज़्यादा काम करने को अच्छा नहीं लगता, लेकिन संडे मॉर्निंग को आई वाज इन माय यूजुअल क्लोथ्स, नॉट इन माय यूजुअल एप्रन एंड ऑल। आई केम, आई टुक अ राउंड एंड आई सॉ दिस पेशेंट वाज जस्ट, अभी जस्ट आया है, पेशेंट हैज जस्ट कम इनसाइड। आई माय डॉक्टर्स आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग। सो incidentally I was taking my round, immediately put my ultrasound probe, and what I found was large amount of water around the heart. हार्ट के आजू-बाजू इतना पानी भर गया था कि हार्ट को कंप्रेस कर रहा था, हार्ट को कंप्रेस कर रहा था। नाउ दिस रिक्वायर्स अ स्प्लिट डिसीजन टू पुट अ नीडल इनटू द हार्ट एंड रिमूव द ब्लड आउट। इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल टैम्पोनार्ड। ये हो रहा था पेशेंट, पेरिकार्डियल टैम्पोनार्ड। वो टाइम पे मैं उधर खड़ा था, मैंने अल्ट्रासाउंड किया, आई फाउंड दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड अराउंड द हार्ट। आई पुट अ नीडल इनसाइड and the blood got released and the patient became completely normal. So this patient would have died in the next 10 minutes. In the next 10 minutes, the patient would have died, and we put that needle inside and the patient, became absolutely fine. So this is something that, you feel on the background. What if I was not there? What if my doctors were busy somewhere else? Agar my presence over there made the big difference for this person. This person lived another day because of the fact that I was able to put that needle inside his inside his heart to get that blood out. That's one. Just so many other things. There's a patient who basically came in with, patient was running at Shivaji Park. Patient, a young girl, 34, 35-year-old, was jogging, good looking girl who was jogging, nice, good body. She comes into the hospital suddenly in a collapsed state. Now she's completely collapsed. And we don't know why she's collapsed per se. We did an ECG. We didn't find what it is. We got a CT done. The CT actually showed that she has got a huge bleeding into the brain. Now, what is happening over here? When they bleed into the brain, as I told you last time, that the pupils will get dilated and then there is nothing we can do. Once the bleeding happens, it becomes so bad that the patient loses life. Immediately we put the patient on a ventilator. हम लोग ने एक SGVO2 monitor नाम का एक चीज़ डाला और हमने उनको बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड कम करने की कोशिश किया. The pupil started reacting. Once the pupil starts reacting, wow, this is something, it's coming back. This lady is coming back. She came back. We rushed this patient for a surgery. We got that surgery done in record 2 hours. The patient was inside the operation theater. We got that hematoma out. Okay, वो जो इसको hematoma इसको बोलते हैं blood, उसको बाहर निकाला, and then she lived another day. Now she teaches, she takes tuitions. I mean, these are things that, these stories are something that makes so much of a difference in our life. And there are many more stories that we can talk about, if we have the time on that. Yeah. I would really like to know this one. I mean, it asks for you to be mentally very present. Yes. And that one moment that has still stayed with you, जिसका आपको कोई closure नहीं मिला है. Yeah. So this occurred a large number of time when in COVID. In COVID, what happened was, for some reasons, it was very difficult in COVID. COVID was one life-changing experience for every doctor. हर डॉक्टर के लिए वो life-changing experience रहा है, जो भी कोविड में काम किया है. तो पहली बात तो हम वो पीपी में बैठे रहते थे. जो भी काम करना है पीपी पहनो. It was so difficult, इतना बड़ा पीपी पहन के करना. And इतना मुझे पता चला है कि एवरीथिंग इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ अ डॉक्टर. मेडिकल साइंस की एक लिमिटेशंस होती है. जैसे कि मुझे लगता था कि हर पेशेंट को मैं बचा सकता हूँ. लगभग मुझे लगा जब मैं कोविड में काम कर रहा हूँ मैं एक सुपरमैन हूँ. 5,000 जाने बचा दिए, 6,000 जाने बचा दिए. दिस अ डिफरेंट लेवल ऑफ केयर. लेकिन देयर वर इंस्टेंसेस वेयर मेरे खुद के सीनियर जब भी एडमिट थे, मेरे सीनियर प्रोफेसर्स वो हमारे अंडर एडमिट होते थे, तो कोविड में हमारे आईसीयू में एडमिट हुए थे. I used to tell them, don't worry, you will be okay. But there have been 2 instances where one of the senior colleague of mine told me, इस बार आप बचा नहीं पाओगे मुझे. Okay. And that was a life-changing experience for me. I thought, no, क्या बोल रहे हैं? I will be able to take you out of it. Don't worry, sir, I'll take care of you. लेकिन वो हुआ नहीं. That patient passed away. Similarly, another doctor said the same thing to me. So this has changed my life in such a way that I understand that we are only players trying to save life, but there is something beyond that too. These patients recognize that they are going to pass away. That is something that I found out only. It's a life-changing experience for me that, yes, I have to be still humble. I can't say that, my name is Dr. Sanjit and I can save everybody. No, I still have to be humble because there is something much more than just medicine. Do you believe in spirituality? Yes, I do. After this, yes, I do. I do believe in that. And I'm telling you, even doctors who are very senior, जो बहुत ही senior doctors होते हैं, वो भी सोचते हैं, come back, let's pray a little bit for this particular patient. In fact, we've had many
conversations with, we allow patients, हम लोग जो patients जिसके priest आने हैं, जिसको आके pray करना हो, तो हम उनको allow करते हैं, हम उनके साथ खड़े रहते हैं. In fact, when they request us, we tell the patient's relatives, this patient is not doing well. हम लोग ऐसा बोलते हैं, तो कोई patients के relatives बोलते हैं हमको कि क्या मैं पुजारी को ला सकता हूँ, और क्या मैं मेरे church के parish priest को ला सकता हूँ. So we say, yes, come. And then we actually believe the fact that, there is something more that will also help this patient. So we also engage in the prayers along with them. This happens on a regular basis in our ICU. Yes. And I'll tell you, spirituality will also help. वो help भी करेगा. There is no doubt about it. There is some calmness that comes with spirituality. There are studies to say that अगर तुम spiritual रहे या तुम meditation करो in any form, it may be spirituality, maybe just meditation, there is going to be a release of enkephalins and interleukins. ये सब inflammatory markers होते हैं, वो कम release होते हैं. हम लोग ने एक long term study जब भी हम करते हैं, those who meditate, उनके pulse rates भी एकदम regular रहते हैं. So there is definitely some role of all of these alternative therapies in these cases. Yes. Do you think the willpower of the patient plays a role when they are going through this kind Recovery? of... Yeah. Yes, definitely. I mean, I'll tell you one thing. If a person believes that he's going to die, he will die. हम लोग कुछ भी कर लो. If he believes that he's going to die, he will die. That is how it happens. We want a person to have complete willpower. Why? I'll tell you. If he has willpower, he will participate in whatever we want to do. अगर हमने उनको बोला कि आपको एक्सरसाइज करना है, तो एक्सरसाइज करेंगे, उसको बोलते हैं विल पावर. अगर पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालते हैं, तो वी वांट दिस पर्सन टू स्टैंड अप एंड वॉक ऑन द वेंटिलेटर. आप समझे? तो आप सोचो, एक पेशेंट जब भी क्रिटिकली इल रहते हैं, तो हम उनको कैसा वेंटिलेटर पे खड़ा कर सकते हैं? नहीं. जिसको विल पावर है और जिसको ऑल अदर फीचर्स आर ओके, हम उनको खड़ा करके चलाते हैं वेंटिलेटर पे. दैट्स विल पावर. बहुत सारे लोगों को जब भी निमोनिया होता है, तो उनको हम एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं ब्रीदिंग कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए. जब हम ब्रीदिंग कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए हम बोलते हैं 3 बॉल वाली एक्सरसाइज होती है, बोलते हैं बॉल को ऊपर करो, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री जिसको बोलते हैं इंग्लिश में. सो we tell them to do incentive spirometry and we want them to pick that ball very, very high up. And what happens is, if you don't have any willpower, you won't perform that exercise. ये willpower करने की वजह से, willpower की वजह से ही हम लोग, this patient will actually say, no, I will do it. और वो कर करके बॉल को ऊपर ले लेता है, ये पेशेंट जो है वो इंप्रूव कर जाता है. Those patients who say, no, I will come out of this, let's do this together, वो लोग बाहर निकलते हैं. So lot of things. अभी जैसे कि मेडिसिन हो गया. अभी एक चीज याद रखो, जब भी आप इंटेंसिव केयर में आ जाते हो, तो आप खाना नहीं खा पाते हो. क्यों नहीं खाना खा पाते हो? बिकॉज कितने मेडिसिन चल रहे हैं. आई डोंट फील ओके, मैं खाना कैसे खाऊं, मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता, हॉस्पिटल का फूड ब्लैंड है, बहुत होता है. लेकिन विल पावर के आदमी को बोलो कि भाई आपको ठीक होना है तो आप खाओ, तो विल पावर वाला आदमी वो लेके खाएगा. He will eat it and he will get better. He will not refuse medicines, he will not refuse injections, he will not refuse treatment. So that is the power of willpower. Willpower is very, very important, and it's important to have that willpower, especially to get through these tough times. So you did mention about the ventilator. और वेंटिलेटर का नाम सुन के मुझे खुद को डर लगता है. There are so many unknown facts that we are ridden in our head. We have built up something like a monster. हमें ऐसा लगता है वेंटिलेटर पे अगर किसी को डाल दिया, दैट मीन्स इट इज एंड ऑफ स्टोरी. आई वॉन्ट यू टू टेल मी विद योर मेडिकल बेस्ट ऑफ नॉलेज, वेंटिलेटर करता क्या है, पेशेंट जब भी वेंटिलेटर पे जाता है उसकी बॉडी में क्या होता है, एंड व्हाट आर द चांसेस ऑफ पेशेंट लीविंग द वेंटिलेटर, समथिंग दैट हैज काइंड ऑफ. आपको ये पता है कि अगर कोई पेशेंट कोई सर्जरी के लिए जाता है, तो उसको वेंटिलेटर पे डाला ही जाता है. ऐसे 90% सर्जरीज में ऐसे होते हैं. आपने कभी ऐसा पूछा नहीं वेंटिलेटर पे क्यों डाला है? तभी हमको एनेस्थीसिया देना पड़ता है, हमको उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है और फिर वेंटिलेटर निकालना पड़ता है. सो वेंटिलेटर पे जाना कोई नई बात नहीं है. ओके, जो पेशेंट्स को वेंटिलेटर की जरूरत है उसको दिया जाता है जब वो ब्रीथ नहीं कर पाते. नाउ लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ निमोनिया. अगर समझो निमोनिया हो गया है और निमोनिया की वजह से पेशेंट श्वास नहीं ले पा रहा है. जब पेशेंट श्वास नहीं ले पा रहा है, उसकी बॉडी की ऑक्सीजन कम जा रही है. ओके, बॉडी इज नॉट एबल टू टेक ऑक्सीजन, तो उसकी वजह से ही विल स्लोली गो इनटू मल्टी ऑर्गन फेलियर. और उसको टाइम लगने वाला है, क्योंकि हम लोग जब ये एंटीबायोटिक्स देते हैं, रिस्पॉन्स आना 4 to 5 डेज जाने वाला है. अगर ये 4 से 5 दिन निकला नहीं, तो क्या कर सकता है पेशेंट? मर जाएगा पेशेंट. इसीलिए वो टाइम को निकालने के लिए, 4-5 मिनट दिन निकालने के लिए उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है. उसको वेंटिलेटर पे जब हम डालते हैं, तो एक 4-5 दिन अच्छे से निकलता है, क्योंकि हम वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और बॉडी को रेस्ट देते हैं. कल मुझे अगर कोल्ड कॉफ फीवर होता है, तो हम क्या करते हैं? हम रेस्ट करते हैं.
जब हम रेस्ट करते हैं तो वी गेट बेटर। सिमिलरली हम वेंटिलेटर जब भी लगाते हैं तो पेशेंट को रेस्ट मिलता है। हाँ, वो बात अलग है कि जिस पेशेंट को वेंटिलेटर लगता है वो बहुत क्रिटिकल रहता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि भाई जिसको वेंटिलेटर लगता है उसको क्रिटिकल तो रहते ही हैं। लेकिन वो पेशेंट्स जिसको वेंटिलेटर लगाते हैं उसको हम जिंदगी जीने का चांस देते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको बताया है कि वेंटिलेटर लगाना है तो बेझिझक हाँ बोलिए, क्योंकि डॉक्टर ने यही सोचा रहेगा कि ये पेशेंट को इसमें से निकलने के चांसेस है। हाँ, हालांकि वो पेशेंट हो गया जिसको एक बहुत खराब कैंसर है, वो कैंसर एकदम फैला हुआ है, उस पेशेंट को हम लोग बोलते भी नहीं कि वेंटिलेटर लगाए, हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसमें हम लाइफ प्रोलॉन्ग कर ही नहीं सकते हैं। कैंसर अगर सब जगह फैला हुआ है, हम जाके उनको वेंटिलेटर लगाएंगे तो लाइफ प्रोलॉन्ग नहीं होने वाला है। लेकिन पेशेंट को समझ लो एक ट्रॉमा हो गया है, पेशेंट का अंदर का कुछ आंतड़ी फट गया है और वो एकदम खराब है, लेकिन ये रिकवरेबल है ना। आंतड़ी अगर मैं उसको एंड इंटेस्टाइन को अगर मैं ऑपरेट करूँ वो ठीक हो जाएगा। तो हम उस पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं, हम उनको स्टेबल करते हैं, फिर सर्जरी के लिए भेजते हैं, सर्जरी के पास वापस आते हैं एंड दे आर ओके, वेंटिलेटर निकाल देते हैं। वेंटिलेटर डालने के 2 टाइप्स होते हैं। ओके, एक टाइप ये होती है जिसको हम बोलते हैं इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन का मतलब ये है कि हम एक ट्यूब डालते हैं मुंह के द्वारा, अंदर एक ट्यूब डालते हैं और बाजू में एक मशीन होती है जो सांस अंदर बाहर करता है। इसको हम इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन बोलते हैं। इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन में पेशेंट बात नहीं कर पाता है, क्योंकि जो नली रहती है वो मुंह में चली जाती है, तो बात नहीं कर पाते। उनको खाना दिया जाता है, खाना हम नाक से देते हैं, एक ट्यूब नाक से डाला जाता है। जब भी पेशेंट वेंटिलेटर पे रहता है तो एक ट्यूब हम नाक से डालते हैं, उसको हम राइल्स ट्यूब बोलते हैं, उसको हम जीआई ट्यूब बोलते हैं। वो ट्यूब से हम खाना उनको देते हैं। वो बात अलग है कि हमारा नॉर्मल दाल रोटी नहीं होता उसमें, लेकिन उसमें स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला फीड होते हैं जो हम देते हैं ऐसे पेशेंट्स को। दे और ये वेंटिलेटर पे रहने की वजह से हम उसको, ताकि उसको कंफर्ट मिले, हम उनको सेडेशन करते हैं, सेडेशन देते हैं ताकि वो सो जाए आराम से। तो उनको पेन रिलीफ, उनको सेडेशन, ये सब वेंटिलेटर के साथ-साथ देते हैं हम लोग, ताकि पेशेंट को रेस्ट मिल जाए। और वो टाइम पे हम पेशेंट को धीरे-धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। दूसरा टाइप का वेंटिलेटर जिसको बोलते हैं हम उसको नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग ट्यूब नहीं लगाते हैं, हम ट्यूब डालते नहीं है, लेकिन हम एक मास्क लगाते हैं, उसको हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर बोलते हैं। तो वो एक ब्रिज होता है, या अगर पेशेंट इंप्रूव जल्दी होने वाला है तो हम नॉन इन्वेसिव लगा देते हैं, और अगर पेशेंट को टाइम लगने वाला है तो हम इन्वेसिव वेंटिलेटर लगा देते हैं। वेंटिलेटर लगाने से प्रॉब्लम्स है क्या? हाँ, कोई मिनिमल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर ऐसा हॉस्पिटल में आप वेंटिलेटर लगा रहे हो जहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज बराबर नहीं है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स होते हैं। अब जहाँ पर ट्रेन्ड मैन पावर ना हो, जहाँ पर ट्रेन्ड स्टाफ ना हो, जहाँ पर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन अदरवाइज इन मोस्ट ऑफ द अदर हॉस्पिटल्स जब हम वेंटिलेटर लगाते हैं तो इट इज ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट दैट दिस वेंटिलेटर इज पुट। आपको ऐसा लगेगा पेशेंट हो तो ऐसे सोया हुआ, वेंटिलेटर डाल दिया, अभी पेशेंट उठ ही नहीं रहा है। पेशेंट नहीं उठता है क्योंकि वो सेडेशन पे रहता है, उसको हमने सेडेशन लेके रखा रहता है। लेकिन एवरी डे मॉर्निंग टाइम 9 o'clock हम उनको उठाते हैं, हम उनसे बात करते हैं। वो हम लोग से बात नहीं कर पाते, हम लोग उनको उठाते हैं, बोलते हैं भाई सब ठीक है ना, एवरीथिंग इज ओके ना, हाँ श्योर, होल्ड माई हैंड, होल्ड हैंड, ऐसा करके हम बात करके फिर उनको सुला देते हैं। समझ में आ रहा है? तो वेंटिलेटर लगाने से पेशेंट खराब नहीं होता। वेंटिलेटर इज अ डिवाइस दैट विल सेव लाइव्स, एंड दैट एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड दैट। अगर डॉक्टर ने कहा है कि वेंटिलेटर डालना है, मतलब देयर इज अ चांस ऑफ सर्वाइवल। अगर वो चांस ऑफ सर्वाइवल ना होता तो डॉक्टर ये आपको सजेस्ट ही नहीं करता। So in your practice, in the ventilator, when you have put the patient on, हाँ। what is the longest time आपने पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा है और उसका अच्छा इफेक्ट भी आया है? या सो वी हैड वन पेशेंट, हमारे पास एक पेशेंट था। अभी आपने सुना रहेगा पूना में जीबीएस नाम का एक बीमारी चल रही है अभी पूना में। जीबीएस ऐसे एक बीमारी है जहाँ पर बॉडी का हर मसल वीक हो जाता है, पेशेंट ना सांस ले पाता है, ना मूव कर पाता है, ना कुछ कर पाता है। सो वी हैड अ फीमेल पेशेंट, एक लेडी थी, यंग लेडी, 31-32 ईयर्स ओल्ड थी वो, एंड शी गॉट जीबीएस। शी वॉज इन अनदर हॉस्पिटल और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। पेशेंट श्वास बराबर नहीं ले रहा है, पैरालिसिस एसेंड हो रहा है, पहला वो पैर नहीं हिला पा रही थी, फिर हाथ नहीं हिला पा रही थी। ये पेशेंट हमारे पास आया एंड शी कुड नॉट ब्रीथ एट ऑल। तो उस पेशेंट को हमने वेंटिलेटर पर रखा एंड शी वॉज ऑन द वेंटिलेटर फॉर 92 डेज। ओके, 92 days she was on the ventilator. She did very well, very very well. She came out of that. हाँ, बीच में बहुत सारे ups and downs हुए, बहुत सारा टाइम ऐसा हुआ कि आपको लगा कि she will not survive, we will not survive. But then it was a willpower again. It was the way she was. It was a treatment. It was the scientific work that we did on her. 92 days later, she was able to come off the ventilator. तभी तक up to 30-35 days, she could only move her great toe, not great toe, little toe. The only thing she could move was a little toe.
तो हम लोग उसको क्वेश्चन पूछते तो वो लिटिल टो हिला के हमको बताती थी yes or no. You know, that is how it was. But then over a period of time, slowly she started regaining power to an extent that she started moving her hands in some second month or something. In the third month, she started being able to breathe on the ventilator. So she started breathing. And then slowly we took her off the ventilator. She did very well and she's like a family member to us as of now. We meet her regularly. She's had a kid now. And this is the longest that I have ventilated patients. But then you must know that people have been using ventilator for जब पोलियो था पोलियो तभी एक वेंटिलेटर नाम आयन लंग का एक वेंटिलेटर यूज किया जाता था जो एक्सटर्नल वेंटिलेटर होता था. So there was a person till 2 years ago who was on the ventilator. From that time onwards, he just passed away a year ago. Okay, till 1.5 years back, he was alive. He was alive. So there was a person from polio times till now on the ventilator. So ventilator can be kept for a long period of time, but the difference is we move the tube from here to here. So we make the person breathe from here. We make a hole over here and make the person breathe from here, attaching to the ventilator. So we can keep ventilators for very long periods of time, and the longest that I have kept is for 92 days. What is the induced coma and the natural state of coma? So we had one patient, and I'll tell you, this is a very interesting case. So this patient was in another hospital and was having repeated convulsions. मतलब बार बार उसको फिट आ रहा था, बार बार फिट आ रहा था. अभी ये फिट इतना ज़्यादा हो गया कि वो हॉस्पिटल बोला कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे, हम उनको वहाँ से शिफ्ट कर दो. तो उन्होंने वेंटिलेटर पे डाल के उनको वहाँ से हमारे पास शिफ्ट किया. हमारे पास आया तो हमारे सामने भी वो फिट ही कर रहा है, फिट कंटिन्यूसली चालू है. जब फिट कंटिन्यूसली चालू रहता है तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं. जब फिट आता है तो ब्रेन डैमेज हो ही जाता है अगर वो प्रोलॉन्ग्ड फिट रहे. और जब भी पेशेंट को प्रोलॉन्ग फिट्स अगर हो जाए, वॉट एवर रीजन इट मे बी, उनको वेंटिलेटर से निकलने को बहुत टाइम लगता है. तो हमने तभी क्या किया, हमने तभी पेशेंट को एक बार्बिचुरेट कोमा में डाल दिया. मतलब हमने क्या किया, हमने ब्रेन का मैपिंग किया. मतलब वी पुट इलेक्ट्रोड्स ऑन द ब्रेन एंड वी अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन. जैसे हार्ट का ईसीजी होता है, ऐसा ब्रेन का ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम. जब हार्ट का हम ईईजी देखा, उसमें हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज देखते हैं, वो हमने देखा. एंड देन सब्सिक्वेंटली वी पुट हिम इनटू एन इंड्यूस्ड कोमा. मतलब हमने वो दवा दिए ताकि वो कोमा में चले जाए. Okay, this is called pharmacological coma or also called as induced coma. तो हमने इतना दवा दे दिया उनको एनेस्थीसिया के मेडिसिन्स ताकि उनका जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो एकदम फ्लैट हो जाए. तो देयर वाज एब्सोल्युटली नो एक्टिविटी इन द ब्रेन. ओके, सो दिस वाज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड कोमा. इनफैक्ट हमने पेशेंट के रिलेटिव्स को समझाया कि हम इस पेशेंट को हम कोमा में डाल रहे हैं. तो हमको पूछने लगे कोमा में आप क्यों डाल रहे हो उसको कोमा में, क्योंकि कोमा वो सुन के भी कोई भी डर जाएगा कि भाई कोमा में हम डाल रहे हैं. लेकिन इसको हमने कोमा में डाला and around 6 or 7 days later हमने उनको उठा दिया and then there was no seizure at all. The 6th or 7th day, I think 6th day, we took him out of the coma and he was completely okay. Now this is called as induced coma. This is like, you know, अगर तुम्हारा कंप्यूटर बंद अगर हो जाए, हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम लोग वो स्टार्ट स्टॉप वापस दबा देते हैं एंड द कंप्यूटर रीबूट्स. सिमिलरली हम इस बंदे का ब्रेन हमने रीबूट कर दिया. दिस इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड कोमा. सो इंड्यूस्ड कोमा इज यूज्ड, albeit now it's very rare because आज की तारीख में इमरजेंसी सर्विसेज इतने अच्छे हो गए हैं इन द अर्बन सेंटर्स वेयर दे आर गेटिंग ट्रीटमेंट इमीडिएटली. वो तभी होता है जब हमने कन्वर्जन ट्रीट बराबर नहीं किया हो, तभी वो हमारे पास आता है. So what is the state of a patient? What kind of level of sensitivity do they have? वो लोग कितना सुन पाते हैं? जब कोमा में रहते हैं, देखो कोमा का मतलब डेफिनेशन बोलूंगा तो इट इज अनअराउजेबिलिटी, नॉट अवेयर एंड नॉट अराउजेबल. मतलब इफ आई पिंच यू कैन नॉट गेट अप, दैट इज द मीनिंग ऑफ कोमा. ठीक है, लेकिन कोमा के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं. कोमा पहुंचने से पहले देयर इज अ स्टेज कॉल्ड एज मिनिमली कॉन्शियस स्टेट. अभी मिनिमली कॉन्शियस स्टेट का मतलब ये होता है कि आई एम अवेयर कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन आई एम नॉट एबल टू आंसर, आई एम नॉट एबल टू एक्ट, आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड. इसको हम बोलते हैं मिनिमली कॉन्शियस स्टेट. ओके, अभी ये हमको कैसा पता चलता है कि ये पेशेंट मिनिमली कॉन्शियस स्टेट में है? अब पेशेंट तो ऐसे ही पड़ा है, ये कॉफी के कप जैसा पड़ा हुआ है, हमको कैसा पता कि मिनिमली कॉन्शियस स्टेट है? तो इसके लिए हमको एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एमआरआई करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल एमआरआई. उसमें हम पेशेंट्स को तस्वीरें दिखाते हैं, उसके घर वाले को तस्वीरें दिखाते हैं, और वो एरिया अगर लाइट अप हो जाए कि भाई वो एरिया लाइट अप हो रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि ये लाइट अप हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मिनिमली कॉन्शियस स्टेट. सो देयर इज अ चांस कि धीरे धीरे दिस पेशेंट विल कम आउट. Okay, but there is some one more state before coma called as vegetative state. A vegetative state वो state होता है कि हम कुछ भी कर लो, जो पेशेंट को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है.
So at that stage he is unaware and unarousable. मतलब उसको पता नहीं है कि आप हो और उसको कुछ भी पता नहीं about his surroundings. That is what is coma. So we will always have a problem in understanding minimally conscious state from the rest. So जो patients हमने सुने रहेंगे कि वो 15 साल कोमा में था अभी उठ गया, 5 साल के बाद उठ गया, 2 साल के बाद उठ गया, वो सब कोमाटोज नहीं रहते। वो कोमाटोज है लेकिन वो मिनिमली कॉन्शियस स्टेट होते हैं। धीरे 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 दे गेट बेटर एंड दे कम आउट ऑफ इट। इट्स मिनिमली कॉन्शियस स्टेट। टू व्हाट एक्सटेंट आप फैमिलीज के साथ पेशेंट की ट्रीटमेंट शेयर करते हैं? So one of the prime things that I personally do is I'm very honest in my profession. So if there is something that needs to be told, अगर किसको कुछ बोलना हो, कोई पेशेंट के रिलेटेड कुछ बोलना हो, तो पूरी तरह हम बोल देते थे। So it is very difficult for a doctor to tell a patient that patient relative that this is what the scene is. आप सोचो कि अगर समझ लो पेशेंट हट्टा कट्टा पेशेंट हमारे पास आया, थोड़ा सा ब्लीडिंग हो गया करके हमारे पास आया और हमने डायग्नोज कर दिया कि उसको कैंसर है। सडनली हम ये उसको बोल रहे हैं, इसको हम ब्रेकिंग बैड न्यूज़ बोलते हैं। तो ये breaking this bad news is very very difficult, लेकिन we tell it very honestly that this is what is happening to your patient and this is what we are trying to do. तो ऐसा काफ़ी टाइम्स ऐसे होते हैं कि हमारे पास कोई भी इलाज नहीं होता, तो हम तभी भी बोल देते हैं कि यू नो दिस पेशेंट इज नॉट गोइंग टू डू वेल, हमको नहीं लगता कि हम मेडिकल तौर से इसको मदद कर पाएंगे, इट इज़ बेटर यू टेक हिम होम और यू डू कंफर्ट केयर, हम ये बोलते हैं। हाँ, अदर वे अराउंड समझ लो पेशेंट को अचानक सा कुछ अर्जेंट सर्जरी चाहिए तो हम वो भी बता देते हैं कि दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग एंड यू नीड टू डू अर्जेंट सर्जरी। और अगर हमको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है, हमको आइडिया ही नहीं है कि ये पेशेंट को क्या हो रहा है, तो हम ये भी बता देते हैं कि एट दिस मोमेंट अगर आप मुझे पूछो कि आपके पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग को कुछ दिन में पता चल जाएगा, कुछ घंटों में हमको पता चल जाएगा जब तक इन्वेस्टिगेशन आ जाएंगे। सो वी आर वेरी क्लियर। टू बी क्लियर इज मच मोर सेफर देन हाइडिंग इन्फॉर्मेशन। सो प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो हम बोलते हैं, बहुत पहले ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि हम आधा कम्युनिकेशन करते थे, लेकिन नाउ वी आर गिविंग कंप्लीट कम्युनिकेशन विच इज़ फॉर ऑल टू हियर। इनफैक्ट आज की तारीख में तो हम जो भी हम कम्युनिकेट करते पेशेंट्स को इन बिग लार्ज सेटअप्स वी डू इट अंडर कैमरा, तो एवरीथिंग इज ऑन स्क्रीन, एवरीथिंग इज नोन टू एवरीवन। दैट्स रियली वंडरफुल। जब भी ऐसी वाली इंफॉर्मेशन मिलती है, आईसीयू में पेशेंट रहता है, पीपल ऑलवेज वांट एन ओपिनियन फ्रॉम देयर नोन डॉक्टर्स और सेकंड ओपिनियन चाहिए रहता है। तो ऑफ कोर्स यू हैव योर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट गोइंग, आपकी एक पूरी फौज यहाँ पे रेडी है हु इज वर्किंग ऑन इट, एंड देन देयर इज दिस अनदर डॉक्टर सिटिंग लिटिल फार. He may have access, he may not have access. How is this entire thing working? How do you accommodate Yes. for the satisfaction of the patient, of course? So we are also satisfied if you take a second opinion, if you ask me. Okay. What happens is if say you have, first of all, हम लोग को क्या understand करना चाहिए कि हम लोग, if we are qualified, the other person also has to be equally qualified. So what we are doing will not be different from what he is doing. तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता कि भाई कोई सेकंड ओपिनियन ले ले, लेना है ले लो, नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम, बिकॉज ही विल एग्जैक्टली टेल अस व्हाट वी आर डूइंग एंड ही विल कंफर्म आवर ट्रीटमेंट। बट अगर आपने ओपिनियन ऐसे लोगों से लिया जो क्वालिफाइड ना हो, दैट इज व्हेन द प्रॉब्लम कम्स। तो हम नॉर्मली क्या बोलते हैं लोगों को कि आप हमारा नंबर भी ले लीजिए और आपके डॉक्टर जो है उनको हमसे बात करा दीजिए, एंड देन ऑन अ मेडिकल फ्रंट हम एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता कि प्रेजेंट कंडीशन है क्या। तो फिर देन दे कॉल अप, द गुड डॉक्टर विल कॉल अप। जो डॉक्टर इज वेरी गुड फैमिली डॉक्टर अगर हुआ तो उनका फोन हमको आता है, तो हम उनसे डिस्कस करते हैं कि ऐसा ऐसा है, कि ऐसा ऐसा हुआ है, एंड देन ही कम्युनिकेट्स टू द रिलेटिव। सो हम लोग को उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई केस आए जो बहुत डिफिकल्ट है तो हम लोग खुद ही बात करते हैं हमारे कलीग से। फॉर एग्जाम्पल से आई एम स्टक अप इन अ केस, एक डेडलॉक हो गया है, केस इज नॉट इम्प्रूविंग एंड इज देयर समथिंग आई कैन डू टू इम्प्रूव माई पेशेंट। एक चीज याद रखो, जब हमारा पेशेंट हमारे साथ रहता है वो हमारे रिलेटिव जैसे बन जाते हैं। वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर देम। Okay, so if we are in a condition where we need help, we immediately ask first of all our colleagues who are there in the hospital, and then we ask whoever can help us. So in fact, we also take the extra mile to ask our patients. हम हमारे पेशेंट से को पूछते हैं कि हम आपके केस फोरम में डिस्कस कर सकते हैं क्या, और फिर हमारे जो फोरम्स होते हैं आज की तारीख में, इंटरनेट, जूम, व्हाट्सएप, इतने सारे फोरम्स आ गए हैं कि हम वो केसेस उसमें भी डिस्कस कर देते हैं, एंड इफ वी गेट अ सोल्यूशन वी कम एंड टेल यू नो दिस इज व्हाट वी हैव डन एंड दिस इज अ सोल्यूशन दैट वी हैव। सो इट इज वेरी रेगुलरली डन। आई मीन these second opinions are regularly done, yes. Of course, these treatments and all comes with a lot of big cost.
what do you suggest to our viewers that amount of insurance that they need to consider for times like these, and how do they justify it? So, yes, healthcare in our country presently also comes at a cost. This is very clear. If you want to go to the general and municipal hospitals, they also do a fantastic job. But unfortunately, Do you believe that? yeah, they do a good job. They do a good job. It's only the fact that you have to stand in a line. The infrastructure is not very good. But if you were to compare the equipment that they have in that hospital versus the private hospitals, it's almost the same. They're very good. They're very, very good. Very good commitment also. It's only the fact that they don't have the time to talk to you. Hmm. Say today you will sit with me and will ask me, how did this pneumonia develop? How did this happen? What are you giving? I will not have the time to deal with you if I am working in a municipality hospital, because of the fact that the caseload is so high. Caseload is so high. Otherwise, the treatment is almost the same. अगर treatment आप देखोगे, treatment municipality hospital और private hospital में treatment is almost the same. I mean, I don't know why people believe they come to the private hospital, but they come to the private hospital because it's the same thing. You want to eat food standing in a line in a small cafe, or you want to go to a five-star hotel. It's the same situation. Okay, both are the same food, it's only packaged in a different way. And the services are different. So as of now, you want better services. You don't want to, if you have the option of going in a bus and go in an Ola, you'd probably take the Ola because of the fact that the services are better, the crowd is lesser. So your comfort, your creature comforts make you go to a private hospital per se. Otherwise, there is no difference in treatment between a private हॉस्पिटल एंड अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हाँ, ऐसे काफ़ी सर्जरीज़ होते हैं जो वो नहीं कर पाएँगे, जो हम लोग कर पाते हैं। ओके, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो कैचिंग अप, वो भी कैच अप हो रहा है। ओके, वो भी कैच अप हो रहा है। बट इफ यू आस्क मी फॉर केयर, केयर में ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है पर से। इफ यू आस्क मी हाउ मच मनी यू रिक्वायर, you know, in municipality hospitals and private hospitals, you don't require, in public hospitals, you don't require anything. You just go there, take an OPD slot and you start, isn't it? Lekin if you come to a private hospital, you will require a good amount of money if you are coming to a private hospital, but you will be ensured that the fact that your patient will get the right treatment, you'll be ensured with the fact that your doctor will be committed to take care of this part. There will be no trainee doctors that are taking care. All of the doctors will be totally involved with your case and they will communicate with you at every level of care. ये private hospital में होता है, and you will know exactly how your patient is going through. However, if you ask me, I don't know why people don't spend on healthcare. Okay, हमारा health spending right from country to personal, everything is less. जैसे कि आपका पता है हेल्थ हमारा कंट्री में हेल्थ एक्सपेंडिचर जीडीपी कितना होता है? 4%। 4% से भी कम। यूएस में कितना है? 18%। अब देखो, लुक एट द डिफरेंस कि पूरा कंट्री कितना इन्वेस्ट कर रहा है हेल्थ में, यूएस, और हमारा कंट्री कितना इन्वेस्ट कर रहा है। हमारा तो ब्राजील, साउथ अफ्रीका जो ब्रिक कंट्री होते हैं उससे सबसे कम है। वी आर ब्रिक कंट्रीज, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ये चारों में भी हमारा हेल्थ केयर स्पेंडिंग सबसे कम है। ये हो गया कंट्री लेवल पे, ये हो गया कंट्री लेवल पे, राइट। नाउ इफ यू गो टू अ लेवल ऑफ पर्सनल लेवल, अभी आप एक महीने में कम से कम 2 बार मूवी के लिए जाओगे आपके फैमिली के साथ। हाँ, आप 2 बार अगर जाओगे, कोई भी पीवीआर पकड़ लो अर्बन सिटी में, हाँ, पीवीआर पकड़ लो, आप 400-500 रुपए की टिकट लेते हो, वहाँ पर आपको पॉपकॉर्न खा लेते हो 500-600 रुपए का। तो टोटल एक्सपेंडिचर 1 महीने का अगर आप पकड़ के चलोगे विद अ फैमिली ऑफ 4 विल बी समवेयर अराउंड 15,000 रुपीज़। Yeah. ओके, अगर आप पूरा एक्सपेंडिचर खाना-पीना सब पकड़ के देखोगे, उतना होता है। हम 5,000 रुपए भी हमारे हेल्थ में लगाते नहीं है इंश्योरेंस में। हाँ, अगर 5,000 4,000 भी लगा दिया इंश्योरेंस में, over a period of time, you will have enough insurance. Now, how much do you take? The average expenditure in a good private hospital per day for at least the first couple of days is going to be 1 lakh rupees. 80,000 to 1 lakh rupees per day. Per day. This is the cost that you have in a private healthcare setup. If you are that sick that you require life support systems. If you are very sick that you require life support systems like ventilators, like machines to keep the kidney going, like medicines to keep the blood pressure, antibiotics, अगर ये सब कुछ पकड़ के चलोगे तो आपका कॉस्ट 80,000 to 1 lakh per day for the first 3-4 days होगा। उसके बाद कॉस्ट 50 to 60,000 रुपीज पर डे होगा। अभी आप सोचो, एन एवरेज स्टे फॉर अ पर्सन इन दी इंटेंसिव केयर यूनिट वेरी क्रिटिकल अगर रहा तो 7 to 10 डेज तो है ही। अगर बहुत क्रिटिकल रहा 7 to 10 डेज अगर पकड़ा तो अप्रॉक्सीमेट आपके पास 10 लाख की इंश्योरेंस होनी चाहिए एटलीस्ट। हमारे पास यूजुअली 2 to 3 lakhs होती है एवरेज इनकम। दैट इज द प्रॉब्लम। सो इफ यू हैव समवेयर अराउंड 10 lakhs only then it is sufficient enough to manage any exigency in life.
Last question I would like to ask you to conclude with, and it has been a very hopeful discussion that, I was with a sigh of relief when you were in a favor with the government hospitals and you were talking. It actually gave me a lot of hope because we always misunderstood the government hospitals. The last question मुझे आपसे ये पूछना है. Unfortunately, when a patient dies, वो सबसे अच्छी गिफ्ट क्या पीछे छोड़ के जा सकता है? The answer to which I tried to read a lot, which is an organ donation. I will want you to take us through कि ये organ donation जब भी होता है, साइकिल क्या होती है, organ कहाँ पहुँचता है, कैसे harvest होता है, और what is the life cycle of that? ठीक है. So this is a very important and very touching topic for anybody in India. इंडिया के लिए सबसे टचिंग टॉपिक ये है क्योंकि आज की तारीख में मुंबई में ही 4000 ऑर्गन्स वेटिंग है, लिवर्स वेटिंग है, किडनीज वेटिंग है, इतने सारे लोग वेटिंग है ऑर्गन्स के लिए. और हमारा डेथ बिकॉज ऑफ ट्रॉमा इज सो हाई. 17-18 जन दिन में 55 एक्सीडेंट्स होते हैं और दिन में मुंबई में. ओके. एंड उसमें से काफ़ी जन ऐसे होते हैं जो ब्रेन डेड होते हैं. वही पेशेंट ऑर्गन डोनेट कर सकता है जो ब्रेन डेड रहे. ब्रेन डेड का मतलब ये होता है कि ब्रेन मर गया है, हार्ट, किडनी, बाकी सब पुर्जे जिंदा है. इसको हम ब्रेन डेड बोलते हैं. अच्छा, not everyone is eligible. नो. इट इज ओनली दोज पीपल हु आर ब्रेन डेड. अभी ये ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट करके एक एक्ट आया था 1996 में. उसके तहत ओनली ब्रेन डेड पेशेंट्स कैन डोनेट ऑर्गन्स. मतलब समझ लो मेरे को एक एक्सीडेंट अगर हो गया एंड आई हैव कम इनटू द हॉस्पिटल एंड हम लोग एक सीरीज ऑफ टेस्ट करते हैं. हम लोग डॉक्टर्स के तौर पे बहुत सारे टेस्ट करते हैं और हमको ये पता चल जाता है कि ब्रेन इज डेड लेकिन हार्ट, लिवर, किडनी ये सब बराबर काम कर रहा है. इसको हम ब्रेन डेड बोलते हैं. ठीक है. यही पेशेंट अगर यूएस में होता तो ब्रेन डेथ इज इक्वल टू डेथ. ये पेशेंट कभी भी जिंदा नहीं हो सकता है. कोई भी देश में, कोई भी वर्ल्ड में, किधर भी ह्यूमैनिटी में अगर ब्रेन डेड को हम लोग डॉक्टर ने बोला कि ये पेशेंट ब्रेन डेड है तो ये पेशेंट कभी भी जिंदा नहीं हो सकता है. तो आप पूछोगे तो हार्ट तो चालू है, लिवर तो चालू है, किडनी तो चालू है. हाँ, वो सब चालू है लेकिन ये पेशेंट कभी भी जिंदा नहीं होगा. जब मैं वेंटिलेटर निकालूंगा उसके कुछ क्षणों में वो खत्म हो जाएगा. जब मैं वेंटिलेटर निकालूंगा कुछ क्षणों में ही विल गो. इट इज नॉट समवन हु इज अलाइव. ब्रेन डेड का मतलब ये है कि अगर मैंने उसको चिमटी मारा तो उठेगा नहीं, मैंने उसको बुलाया, पुकारा तो उठेगा नहीं, मैंने उसको बोला ये करो वो करो, नहीं करेगा. ये समझ में आ रहा है? ब्रेन डेड का मतलब ये होता है. सो ओनली दोज पीपल हु आर ब्रेन डेड कैन एक्चुअली डोनेट ऑर्गन्स. इसका मतलब यह है कि समझ लो मैं जब भी जिंदा हूं तो मैं मेरा एक कार्ड भी लिख के रखूंगा कि भाई अगर मेरा देहांत अगर हुआ और मैं ब्रेन डेड अगर हो गया तो प्लीज मेरे ऑर्गन्स किसी को भी अलॉट कर लो. ये हमको लिखना पड़ता है, हमारे वॉलेट्स में डालना पड़ता है. ब्रेन डेड का हमारे पास एक कार्ड है जो जोनल ट्रांसप्लांट कमेटी के तौर पे वेबसाइट पे है. वो कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो. उस पर लिख सकते हो कि इफ इन द इवेंचुअलिटी दैट आई पास अवे माय ऑर्गन्स शुड बी टेकन टू बी ट्रांसप्लांट टू समबडी एल्स. ये होता है पहली बात. लेकिन हमारा देश है ये खाली इससे काम नहीं चलता है. हम आपके रिलेटिव्स को भी बोलना पड़ता है कि भाई अगर मेरा अगर देहांत हो जाए तो मैं ब्रेन डेड अगर हुआ तो प्लीज मेरे ऑर्गन्स प्लीज गिव इट टू समबडी हु रिक्वायर्स देम. तो फिर हम डॉक्टर के तौर पे हम आफ्टर वी डायग्नोज ब्रेन डेड हम क्या करते हैं, हम वो पेशेंट के रिलेटिव्स के पास जाते हैं. नेक्स्ट ऑफ किन जिसको बोलते हैं. नेक्स्ट ऑफ किन मतलब एक हस्बैंड अगर हुआ तो उसका वाइफ हुआ तो हस्बैंड, अगर फादर है तो उसका सन. ऐसे नेक्स्ट ऑफ किन के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि did your person have any ambition to actually give the organ to somebody else? वो डोनेट करना चाहते थे क्या? अगर उन्होंने बोला कि हाँ डोनेट करना है या उनको करना है डोनेट तो हम इमीडिएटली उनसे बात करते हैं कि भाई कौन सा ऑर्गन्स डोनेट करने हैं. तो ऑन एन एवरेज लिवर, 2 किडनी, हार्ट, लंग्स, स्किन, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास ये सब डोनेट हो सकता है. ये सब डोनेट हो, मतलब आप सोचो एक आदमी से कितना जान बच सकता है. एक पर्सन से जो ऑलरेडी जा चुका है, ब्रेन डेड हो चुका है, उससे कितने सारे जान बचा सकते हैं. वो तो सबसे बड़ा डॉक्टर हो गया ना. हम लोग जब भी डॉक्टर की बात करते हैं हम लोग बोलते हैं हम जान बचा रहे हैं, ये तो जान दे रहे हैं. आप ये सोचो ये जो ब्रेन डेड पेशेंट है ये दूसरे को जान दे रहे हैं. इट इज लाइक दैट इज अ वेरी डिफरेंट, अलग ही लेवल का एंजॉयमेंट रहेगा वो कि भाई वो किसी और को जान दे रहा है. तो पहली बात तो जब भी वो लोग हाँ बोलते हैं तो हम कंसेंट्स वगैरह लेते हैं और कंसेंट्स लेने के बाद हम
जो जोनल ट्रांसप्लांट कमेटी होती है, जो एक गवर्नमेंट बॉडी है, उनको बोलते हैं कि ऐसा एक पेशेंट आया है, पर्सन है जो ब्रेन डेड है, जिसके ऑर्गन्स हम डोनेशन के लिए रेडी है उन लोग। जब ये किया जाता है तो उसके बाद गवर्नमेंट अलॉट कर लेता है कि सबसे हाई प्रायोरिटी किसको है। वो कंप्यूटर जनरेटेड एल्गोरिदम होता है। सब जो भी ऑर्गन्स वेटिंग, जो भी पीपल वेटिंग है ऑर्गन्स के लिए, उनका सब नाम एक कंप्यूटराइज लिस्ट में होता है। एंड इट कैन नॉट बी टेम्पर्ड। कोई भी कुछ नहीं, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना कोई भी कुछ कर सकता है। कोई भी हॉस्पिटल कुछ नहीं कर सकता। आपके पास अगर पैसा है तो भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये कंप्यूटराइज्ड जनरेटेड एक लिस्ट होता है, जिसमें जो पेशेंट को सबसे ज्यादा जरूरत है वो सबसे ऊपर रहता है। ओके, वो रहा किडनी, वो लिवर हो गया, हार्ट हो गया, हर चीज के लिए उसका नाम लिस्टेड होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, मैच करते हैं भाई इनका ब्लड के और उनका ब्लड कैसे मैच होता है, उसे मैचिंग होते हैं, बहुत सारे मैचिंग करते हैं ताकि हमको पता चले अच्छा ये मैच हो रहा है। अगर ये मैच अब हो वो गया, भी एल्गोरिदम कर लेता है। नहीं, ये मैचिंग हमको करना पड़ेगा, हमको ब्लड यहाँ से निकालना पड़ता है, ब्लड वहां से निकालना पड़ता है। अगर ये समझ लो पेशेंट और किधर है, पूना में है, तो उसको फोन करते हैं, भाई देखो आपका आपका टर्न आ गया है, आपका मैचिंग करना है। मैच अगर हो गया तो कैसे तो भी उसको हमको मुंबई में लाना है। सिमिलरली समझ लो वो पूना में और वो मुंबई में नहीं आ सकता है, तो हम मुंबई से ऑर्गन को पूना भेजते हैं बाय बाय प्लेन, बाय हेलीकॉप्टर। और आवर ट्रैफिक पुलिस, आवर गवर्नमेंट डज अ फैंटास्टिक जॉब। हमारे लिए जब भी हम ऑर्गन्स हम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हमारे लिए समथिंग कॉलेज से ग्रीन कॉरिडोर बना के देते हैं। ग्रीन कॉरिडोर, ग्रीन कॉरिडोर ये होता है कि जहां से वो लैंड होता है, वहां से हॉस्पिटल, जो रिसिपिएंट हॉस्पिटल है जहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, वहां तक पूरा का पूरा ट्रैफिक को होल्ड किया जाता है। और हम लोग मिनट्स में पहुंच जाते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए वहां पर। हमको कभी पता ही नहीं चलता है कि किसको जा रहा है, ना हमको पता चलता है, ना किसी को पता चलता है कि ऑर्गन किसके पास जा रहा है। ओके, वो क्योंकि कंप्यूटराइज्ड होता है, वो ना हम कुछ कर सकते हैं, ना हम उसको टैंपर कर सकते हैं। और ना रिसिपिएंट को भी, जो डोनर है उसको भी नहीं पता रहता है, वो फैमिली को भी पता नहीं रहता है कि ऑर्गन जाता किधर है। इट माइट गो एनीवेयर इन द कंट्री। समझ लो हमारे पास बॉम्बे में डोनर नहीं है तो महाराष्ट्र में डोनर है क्या, महाराष्ट्र में रिसिपिएंट है क्या, अगर महाराष्ट्र में रिसिपिएंट नहीं है तो नेशनल में रिसिपिएंट है क्या, ऐसा वो टर्न बाय टर्न जाता है वो। दैट इज हाउ ऑर्गन डोनेशन टेक्स प्लेस। बट इट्स अ फिनोमिनल थिंग। आई थिंक अगर मेडिसिन में सबसे बड़ी चीज हो तो वो ऑर्गन डोनेशन है। अम, अगर आपको लास्ट एक टेक अवे देना हो हमारे व्यूअर्स को, टू अवॉइड द लैंडिंग इनटू आईसीयू, आर देयर एनी अंडरलाइंग सिम्पटम्स दैट दे ऑफन इग्नोर, और हाउ डू यू वांट पीपल टू टेक केयर ऑफ इट? Okay, so I'll split this into two parts. First is how to prevent an illness. Number one, preventing an illness is doing things that you do right, better. That means to say, sleep for 8 hours. Ensure that you get 6 to 8 hours of sleep on an average day. Drink a good amount of water. An average person will require 8 to 10 cups of water. Okay, so 8 to 10 cups of water per day. Ensure that you are having a healthy lifestyle. That means you are getting up and exercising at least for 30 to 45 minutes in a single day. Ensure that you are not eating food from outside. Home cooked food which are completely non-processed is something that will keep you living long. Don't ignore the signs of diabetes or a heart issue anytime. So in the sense that you're not feeling your legs or your sugar is on the higher side, don't ignore it. Come to the doctor. Take help early in life. Because remember this, diabetes is a silent killer. It is the biggest killer that you can think of. Avoid that. You'll avoid heart issue, you'll avoid stroke, you'll avoid everything else per se. Now the second part of the question is whether if you have an emergency at home, what do you do? Okay, first thing, 5 important takeaways I'll give you on this. Okay, if you are at home and there is an emergency, let it be anything. Okay, first thing is, don't run around with your hand in your pocket. You will fall down. You will become the emergency. Okay, so don't do that. Number 2, don't call your personal loved ones. That is waste of time. They are not going to help you. Your personal loved ones are not doctors. They will not help you. Call the person, call 108 or the number of the ambulance. That will help you. So call them. Third thing, presence of mind, calm. That means you have to ensure that आप एकदम साइलेंटली कामली ये सब देखे एंड देन अंडरस्टैंड हमको क्या करना है फर्दर। पल्स रेट अगर चेक करना है, बीपी अगर चेक करना है, पेशेंट का कॉलर ठीक करना है। थर्ड, कामनेस, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कामनेस। फोर्थ, don't try to put this person into your car and take this person. Very wrong thing. Very wrong thing. Don't do that. When you're doing that, what we want is the ambulance services coming to you, giving you first aid there, and then taking you to the hospital where you have to go to, not taking you anywhere. If you put them in a car, it is not something that you can help in. In fact, you would be in stress, you would be driving fast, you will get into an accident.
Okay, so it's not something I would not say take him in your own car. That is something that is very wrong. Let the ambulance services come. The ambulance services will have a trained EMS doctor in that place and they will take him. लोग देखेंगे. And the fifth most important thing is आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सबसे नजदीक टर्शरी केयर सेंटर कौन सा है जहाँ पर सब सुविधाएं हैं. That should be always there on your back of your mind, and you must say that this is where I need to go because this is where all the facilities are. So these 5 things, if you keep in your mind, you will ensure that your loved one gets the best help in the event that there is a problem. It was wonderful, wonderful, wonderful having you. I'm sure there are many topics that we have not yet touched upon. We'll be looking forward to having you next time also. Till then, we'll say goodbye to our viewers. Whatever questions you may have, you may, drop it into our comment section and we'll reach out to you with the answers that doctor has to give. Thank you so very much. Thank you very much. In our podcast, आपने देखा डॉक्टर संजीत शशिधरन ने कुछ information share करी. It is about for the people who are part of the situation, they're witnessing, they're experiencing. As a society, हमें काफ़ी सारी information नहीं रहती है कि ऐसे situation में क्या किया जा सकता है. What are the few things that will make a difference, that may save their life? I will request you all to share, subscribe, and like this. Share it with as many people as possible. You never know where it will help. Thank you.